Okay, good afternoon, student. Good afternoon, sir. What about others? Good afternoon, sir. Okay, means you are in class. Yeah. Good afternoon, sir. Okay. Thank you for your confirmation. Okay, tell me about the last lecture. करवाए थे आपने कौन से सम किए थे हमने? सर डिवीजन वाला. Okay, that means in last lecture we have discussed the examples of the properties of the Laplace transform. Am I right? यस सर. सर वो Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन आप कराओगे सर? Okay, I start with that and then we go for the next part of our unit, that is the Laplace transform of discontinuous function, and after completing the Laplace transform of discontinuous function we go for the Laplace transform of periodic function एज टाइम कंस्ट्रेंट. ओके, जैसे हमको टाइम मिलेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे. सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन द पार्ट्स एग्जांपल. यस पार्ट, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन? सर t माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5t अपॉन t वाला. ये वाला, यस, दिस वन. यस सर. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर उसमें जो इंटीग्रेशन हुआ ना सर नीचे जो, यस, हाँ बोलो बोलो, मैं नीचे ले जाता हूँ बाद में, बोलो. सर उसमें प्रॉब्लम है सर. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको. देखो यहाँ पे क्या है, 1/s². किसका किया उन्होंने? टी का, है ना. एंड माइनस साइन हाइपरबोलिक 5t, दैट मीन्स 5/s² माइनस 25 ds. ओके एवरीबडी? Yes, sir. Okay. Now here they separate both the integration. That means integration s to infinity 1/s² ds minus 5. Integration s to infinity 1/s² minus 25 ds. Now if you factorize this denominator, then you have the s minus 5. S plus 5 into S minus 5. Yes. Now after this they arrange this term. Means if you have 1/s minus 5 into 1 plus 5, so we can write down in this way: 1/10 s plus 5 minus s minus 5. So if you see, s will be cancel out and 5 plus 5 10, so 10 divided by 10, it will be 1. Okay, अंडरस्टैंड एवरीबडी? क्या किया मैंने? डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस सर. ओके. Yes, sir. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/10 एज इट इज. नाउ इफ यू use the a plus b divide by c. Okay, so what is the expression for this? A by c plus b by c. Yes or no? यस सर. So here s plus 5 divided by whole. So if you write down here, so s plus 5 divided by s minus 5 into s plus 5. Okay, minus here s minus 5 divided by s minus 5 into s plus 5. Okay, so 1/10, here s plus 5 will be cancelled out, so 1/s minus 5 minus 1/s plus 5. So this is the term here. Okay, you can see here the same expression is here: 1/10 integration s to infinity 1/s minus 5 minus 1/s plus 5 ds. Okay, is it okay up to here? Yes, sir. यस सर. Okay, now the integration of 1/s² is minus 1/s. S to infinity is the limit of that term. Then here 5/10, that means 1/2. Now the integration of 1/s minus 5 is log s minus 5. Minus 1/s plus 5 का integration होगा minus log s plus 5 integration s to infinity. So here again minus is outside, so minus 1/s raised to minus s to infinity minus 1/2 log. They combine both the logarithms, so log a minus log b, that means log a by b. So log s minus 5 divided by s plus 5, and the limit will be s to infinity.
Now we know that if you substitute limit infinity in first term, then it is okay, no problem. That means 1 by infinity means 0, minus minus plus 1 upon s is there. But whenever you want to replace infinity in this type of form, then you have to think about the common s. So अगर आपने s common ले लिया तो 1 minus 5 by s divided by s, 1 plus 5 by s. Okay, so s will be cancelled out. So you have 1 minus 5 by s, 1 plus 5 s. Now you can substitute your infinitive, because if you substitute infinitive directly, then your answer is log infinitive, and log infinitive means infinitive. That means you will get your whole answer is infinitive, but it is not correct. Okay. Yes, sir. Okay, so here the s will be common, then s will be cancelled. Now substitute the limit of s as infinitive. So we have 1 minus 0 upon 1 plus 0. It gives us log 1. Log 1 will be 0. So the 0. answer of infinity will be 0. So 0 minus of this one. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 0 minus of log s minus 5 upon s plus 5. So here minus minus plus 1 upon s plus 1 by 2 log s plus s minus 5 divided by s plus 5 is your final answer. So now is there any question, any doubt in this example? No doubt, sir. पार्थ आपको डाउट है? No doubt, sir. Okay. Now any problem up to here, anybody? Okay. Now we No, go. sir. Okay, thank you. Now we go for the next topic. It is the Laplace transform discontinuous function. Okay, so Laplace transform discontinuous function. Before going to discuss this topic, you have to understand about the discontinuous function. What do you mean by discontinuous function? Anybody? Function not differentiable at any point. डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल आई थिंक आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो उसमें पहले लिमिट आया था, फिर कंटिन्यूटी आया था, एंड फिर डिफरेंशिएशन हमने डिफाइन किया था, है ना? Yes, sir. तो कंटिन्यूटी पहले आया तो कैसे हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो कंटिन्यूस है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना? देखो उसमें ऐसे गए थे हम, लिमिट फिर कंटिन्यू, और कंटिन्यूटी एंड लिमिट की हेल्प से हमने डेरिवेटिव डिफाइन किया है। तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन यहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा, मीन्स दोज फंक्शन हु आर नॉट कंटिन्यूस देन इट इज नोन एज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। यस और नो? Yes, sir. बट कुछ फंक्शन Yes. ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन क्या होते हैं कि पार्टीशन वाइज भी कंटिन्यूस होते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर x एंड दिस इज योर y एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. ओके, सो समटाइम्स द फंक्शन लुक्स लाइक दिस, यहाँ 0 फिर यहाँ कुछ 1 पे, है ना? तो ऐसे फंक्शन को आपको डिफाइन करना है तो वो हुआ तो डिसकंटिन्यूस है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन you can find the Laplace transform of this function because these type of functions are piecewise continuous. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So if you have the piecewise continuous Sir. and exponential order function, then we can find the Laplace transform. So the topic is related to that type of function. तो ऐसे जो function है उसके लिए हम ऐसे define करते हैं ज़्यादातर कि f of x है आपके पास, so f of x इस तरीके से दो अगर दिया है तो दिस इज योर g of x, दिस इज योर h of x. नाउ यहाँ पे a लेस देन x लेस देन b एंड हियर b लेस देन x लेस देन infinity. This type of functions are known as the discontinuous function. Okay, Yes, sir. so we will find out the Laplace transform of this type of function. So the topic is related to discontinuous function. So first function is f of t is equal to 2 and 0, 0 less than t less than 3 and t greater than 3. So first understand this function. So what you understand from this function? Anybody? Sir, 0 થી 3 વચ્ચે 2 અને 3 3 greater હોય તો 0. Very good. So you have to understand about this inequality. T greater than 3 means 3 less than t less than, but 3 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है? It goes up to infinity. Yes or no, everybody? Yes,
sir. Yes, sir. So if you want to find the Laplace transform of this type of function, so you cannot apply the any formula or any property for this. कोई भी property है. Sir, Yes, yes. ये फंक्शन 3 के पास तो डिसकंटिन्यूअस आएगा ना? 3 के पास ही डिसकंटिन्यूअस है. हाँ, सही है. तो सर 3 के अलावा भी सभी जगह पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते? सभी जगह पे लाप्लास हाँ लगा सकते हैं ना, इसीलिए तो हम फाइंड कर रहे हैं. ओके सर. है ना, यही तो हुआ ना. देखो मैंने क्या बोला कि ये फंक्शन अगर आप स्टडी करेंगे ना तो 0 to 3 में 2 है और 3 से ज़्यादा ऐसा बन रहा है. देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए. देखो अगर इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस देन दिस फंक्शन इज लाइक दिस. यहाँ तक 2 चल रहा है ना, 2 पे जा रहा है और फिर सडनली 3 से वो 0 हो जा रहा है. ओके है ना. सो 0 to 3 में वो 2 है और 3 से इन्फिनिटी में वो 0 है. सो यहाँ उसका डिसकंटिन्यूअस हुआ, लेकिन वी कैन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द पीसवाइज कंटिन्यूअस. ओके. यस सर. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस टाइप ऑफ फंक्शन. सो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला आगे वाली लगा सकते हो. एनीबडी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. नो है ना. आगे जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू at लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ टू n, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin हाइपरबोलिक at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबोलिक at. We cannot apply those formula for this type of function. Am I right or wrong? Yes, sir. So whenever you have no any other option, then you have to use the first formula of or main formula of Laplace transform. What is the main formula of Laplace transform? So we know that Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity f of t into e raised to minus st dt. Okay. Yes, sir. Okay, now you have to identify your interval first. So 0 to infinity में ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं वो चेक कर लो, क्योंकि ये होगा तभी we can find the Laplace transform. We can apply this formula. Okay everybody. देखो अब 0 to 3 and 3 to infinity, तो बेसिकली 0 to infinity हुआ कि नहीं टोटल इंटरवल. अंडरस्टैंड. रिपीट करूँ. Yes, sir. ओके. सो यहाँ पे देखो मैं ऐसा बोल रहा था कि एफ ऑफ टी का टोटल इंटरवल चेक करो. सो टोटल इंटरवल यहाँ पे एफ ऑफ टी का है 0 से मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है. सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इजीली. ओके. सो यहाँ पे देखो चलो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी वी कैन नॉट चेंज दिस वन. ओके. नाउ 0 to infinity है. सो हाउ मेनी पार्टीशंस फॉर द फंक्शन इन दिस एग्जाम्पल? Two partition. Two partitions. So write down first two integration and start with the minimum value, that means 0 to first जो partition है वो 0 to 3 है. So 0 to 3 and second जहाँ यहाँ पे आपने stop किया है वही 3 से infinity. 3 to infinity. Very good. Now what is the value of f of t for 0 to 3? 2. 2. 2. There is 2 here. Now e raised to minus st is not changed, it is as it is. And 3 to infinity में what is the value of f of t? 0. 0. So Zero. 0 into e raised to minus st dt. So is there any doubt, any question up to here? No, sir, no doubt. So then Laplace transform of f of t is equal to 2 is outside. Now we have 0 to 3 e raised to minus st dt. Now plus this will be 0. Yes, 0. sir. So 0 into something, that means 0. So we have only two integration 0 to 3 e raised to minus st dt. Now what is the integration of e raised to minus st with respect to t? E raised to minus st upon which variable is constant?
minus s. Yes, so you have to divide by minus s because the formula for Laplace transform, integration e raised to at dt will be e raised to at by a. Okay, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And limit is 0 to 3. So now we first replace 3 then 0. So we have 2 e raised to, अब किसकी जगह पे रिप्लेस करना है? t t. Yes, don't T. forget. Yes, don't forget it because आगे जो एग्जांपल किए थे उसमें हम s की लिमिट रख रहे थे, जो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें हम ये जो लिमिट थी वो किसके लिए रख रहे थे? s के लिए, लेकिन इस एग्जांपल में हमको t के लिए सब्स्टिट्यूट करना है. सो डोंट फॉरगेट इट. सो t raised to minus 3s upon minus s minus e raised to 0 upon minus s. So minus s or s will be common, so 2 by s. Now you have minus e raised to minus 3s minus minus plus 1. So your final answer is 2 by s 1 minus e raised to minus 3s. Yes or no? Yes, sir. Okay, so is there any doubt, any question in this example? Anybody? Doubt, sir. No doubt, sir. Okay. The next example, f of t is equal to t and 5. Okay, so again you have to check first if the function is in, दो ना ऊपर वाला sorry. लिख लेना लास्ट दो स्टेप. Okay, okay, write down this. Do faster. सर डन. थैंक यू सर. Okay, now think about this function. Can we apply the main formula for this function by checking the interval? Yes, sir. Because इसका Yes, mean sir. Yes, sir. 4 less than t less than infinity. Yes or no? Yes, sir. So we have to start with the main formula. So we know that Laplace transform f of t is equal to integration 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. Okay, everybody? So next क्या करेंगे? Yes, next क्या कर सकते हैं? जो एफ ऑफ टी दिया है उसी काम को फाइंड करना है. देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, ये विजिबल है या ऊपर वाला सही था? सर विजिबल है. ओके, लेकिन विच वन इज बेटर? सर ऊपर वाला रख दो तो भी हाँ वही सही रहेगा. ओके ओके ओके. So Laplace transform f of t is equal to, we have the two partitions, so we do first two integration. First integration is 0 to क्या हो जाएगा? 4 और दूसरा 4 से इंफिनिटी. Very good. Now if you substitute the value of f of t in 0 to 4, what is the value for that? टी आएगा. Yes, t into e raised to minus st dt plus 4 to infinity में f of t क्या है? 5? 5 5. Yes, sir. 5 e raised to minus st dt. Now how we can integrate this function? By UV rule? Yes or no? Yes, sir. So what is the UV rule? So UV rule is if u into v into dx, so first you have to u as it is integration of v dx Yes, sir. minus v as it is फिर u को इंटीग्रेट कर. नो वो नहीं था बेटा, ये था देखो, फिर इसका होल dx. ओके, ओके सर. integration by parts, this is known as the integration by parts. Okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So we use here, so how we can do it?
So you can see here, first t as it is, the integration of e raised to minus st is e raised to minus st upon minus s minus integration of differentiation of t with respect to t is 1 into the integration, this one is as it is, so e raised to minus st upon minus s into dt. Okay, and 0 to 4 is that. Everybody understand this step? Yes, sir. Okay, and next one, Yes. 5 is outside, 4 to infinity e raised to minus st dt. Now again we can do the integration of this one, so यहाँ पे t e raised to minus st upon minus s as it is, माइनस माइनस प्लस. अब देखो dt का करना है तो 1 अपॉन एस उसके लिए कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एस टी इज e रेज टू Minus S. एस टी अपॉन माइनस एस. यस और नो? Yes, sir. And limit will be 0 to 4 plus 5 as it is. The integration of e raised to minus st is e raised to minus st upon minus Minus s, S. and limit will be 4 to infinity. Okay. Okay, everybody up to here. Yes, sir. Yes, sir. Now we replace the value of 4 first. So in which place we can replace 4? T. Okay. T की जगह पे. Yes. So 4 e raised to minus 4s upon minus s, माइनस से मैं माइनस कर रहा हूँ, 1 अपॉन एस स्क्वायर कर दिया मैंने, एंड हियर e raised to minus 4s. ओके, देन 0 सब्सटीट्यूट करें तो माइनस, सेकंड लिमिट का माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये तो 0 ही रहेगा पहला, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, सो 0. सेकंड लिमिट का माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू ई रेज टू 0. यस और नो? Yes, sir. Okay, and यहाँ पे 5 as it is. Now here e raised to minus infinity upon minus s, minus minus plus e raised to minus 4s upon s. Okay, done? Yes, sir. Yes, sir. Now you can move further. So here you have minus 4 e raised to minus 4s upon s. You have minus e raised to minus 4s upon s square. Here you have the e raised to 0 means 1, so 1 upon s square. Now here e raised to minus infinity means 0. okay, so e raised to minus infinity is equal to 0, so we use here. So we have plus 5, plus 5 e raised to minus 4s upon s. Now can we club these two terms? Yes, sir. So minus 4 plus 5, what we have? Minus e raised to 4 minus 4s by नेगेटिव आएगा. s. पॉजिटिव आएगा ना, माइनस 4 प्लस 5, सो दैट मीन्स Yes, sir. Positive आएगा. so e raised to minus 4s upon s minus e raised to minus 4s upon s square and plus 1 upon s square. So this is our required Laplace transform of the given discontinuous function. Understand everybody? Yes, sir. सर वो यूवी वाला फॉर्मूला एक बार दिखा दो. Okay, देख लो. डन सर. Okay, now you go further. Okay, next example. Yes, f of t is equal to t minus 1 square 0. Okay, t minus 1 square t greater than 1 के लिए, and 0 है 0 to 1 के लिए. So again, can we find the Laplace transform of this function? Yes, sir. So we know that you are good singer, and so
Yes, thank you. Okay, so we can find the Laplace transform of this function. Okay. Yes, sir. Okay, so we start with again main formula Laplace transform. So we know that Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. Now, therefore, we continue with that Laplace transform of f of t is equal to how many partitions in function? 2 partition. Yes, two 0 to 1. partitions. So सर 0 to 1 और फिर 1 से infinity लेने का. वेरी गुड. देखो यहाँ पे ऊपर नीचे दिया है ना, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये पहला है फिर सेकंड. यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. ओके, सो 0 to 1, 1 to infinity. So what is the value of f of t for 0 to 1? t minus 1 whole square. Wrong. 0. सर 0. हाँ सॉरी 0 लेने का. 0. Okay, so 0 into e raised to minus st dt. Now 1 to infinity के लिए f of t t minus t 1. minus 1 whole square. यस, e raised to minus st dt. तो यहाँ पे आपको ये तो 0 मिल गया और यहाँ पे हमको मिला 1 to infinity t minus 1 whole square e raised to minus st dt. Understand everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा था यूवी रूल. ओके, इसी को हम दूसरी तरीके से, क्योंकि नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड. ओके, आप चाइल्ड नहीं हो तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे. आप यू आर इन कॉलेज, सो वी यूज़ दिस फॉर्मूला यू वी डी एक्स. ओके, जब भी ऐसे स्क्वायर वाले हैं या क्यूब वाले, उसके लिए आपको ये इजी रहेगा. अब ये फॉर्मूला क्या है? सो फर्स्ट यू एज इट इज you have to integrate v, that means first time integration means v1 minus derivative of u, that means u dash, जैसे हम यूज करते हैं सिंबल वही. और v1 का फिर से इंटीग्रेशन, दैट मीन्स v2 बोल दिया मैंने. उसके बाद प्लस, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव सीरीज है ये. सो u डैश का u डबल डैश, v2 का फिर से इंटीग्रेशन v3 एंड सो ऑन. मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, u जो है उसका डिफरेंशिएशन करते जाना है, v जो है उसका इंटीग्रेशन करते जाना है, एंड सभी टर्म के बीच में प्लस माइनस ऐसे आपको रखते जाना है. अंडरस्टैंड द एक्सपांशन ऑफ द यूवी रूल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द यूवी रूल. तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो देखना यहाँ पे मैं सबसे पहले u डिसाइड करता हूँ. व्हाट इज माय u हियर? T minus 1. t minus 1 Yes, t minus 1 whole square. is my u. And what should we take? v. So this is my v. अब ऐसा क्यों किया? minus st. हाँ, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसका डिफ्रेंशिएशन जल्दी फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको हम u बोलेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन चलता रहता है उसको हम v बोलेंगे. ओके, सो दैट इज़ द रूल फॉर दैट. सो अब इसका फर्स्ट मैं कर रहा हूँ u एज इट इज़, दैट मीन्स t minus 1 स्क्वायर. ओके, चलो मैं स्मॉल थोड़ी कर देता हूँ स्लाइड, तो यू गो थ्रू द फॉर्मूला ऑल्सो. ओके, देखो u एज इट इज़, दैट मीन्स t minus 1 स्क्वायर एज इट इज. now इंटीग्रेशन ऑफ v, सो मैं इसे उसको ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. सो दिस इज योर फर्स्ट इंटीग्रेशन. बीच में माइनस करना है. अब डेरिवेटिव ऑफ t minus 1 होल स्क्वायर क्या होगा? 2t minus 1. 2t minus. यस, वेरी गुड. अब इसी का इंटीग्रेशन फिर से करना है, तो e रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा. तो ऑलरेडी एक माइनस एस था, दूसरा आएगा, सो माइनस एस होल स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. ओके, फिर प्लस. अब द डेरिवेटिव ऑफ 2t minus 1 का क्या हो जाएगा? 2. 0. नहीं, जीरो नहीं होगा बेटा. 2 होगा ना सर? हाँ, 2 होगा. t का 1, 1 का 0, तो 2 into 1 हो जाएगा 2. ओके, अंडरस्टैंड? जिसने 0 बोला तो उनको पता चल गया. Yes, sir. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, थर्ड आया, दैट मीन्स एस क्यूब.
Now if you go next, then the derivative of 2 will be 0. Okay, ऐसे कंटिन्यू करना है. So जैसे 0 आता है, you stop here and write down the limit. So is there any doubt, any question in this time? Anybody? No, sir, no doubt. No doubt, sir. Okay. Doubts. Okay, very good. Now here we substitute first infinity. So if you observe here, so each term has e raised to minus infinity. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So that means each term is 0 for infinity. So first this is your 0. Second limit substitute karo, that means minus. Now replace 1 in place of t. So 1 minus 1, again first term 0 ho gaya. Here is also 1 minus 1, so 0 ho gaya. Yeah, plus 2 है ना. Substitute the value of Yes. t. Okay, Yes, so sir. e is to minus s upon minus s cube. Yes or no? yes, sir. Yes, sir. Okay, so final answer is, you can see here, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दिस इज माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स प्लस 1 माइनस 1. ये माइनस 1:3 है तो एक माइनस देगा ना यहाँ से. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वो माइनस और बाहर जो माइनस है वो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे. सो 2 ई रेज टू माइनस एस डिवाइड बाय एस क्यूब. सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड Laplace transform. Understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so is there any doubt, any question? Example? No, sir, no doubt. Okay, then we go for the difficult example. देखो यहाँ पे उन्होंने जो बोला वही हमने जो यूज़ किया वही यहाँ पे t माइनस 1 होल स्क्वायर ई टू माइनस एस टी का आंसर इन्फिनिटिव के लिए 0 होगा, वो उन्होंने दिखाया है. कैसे होता है वो तो हम जानते ही है ना. फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर और नीचे लिबनिज रूल उन्होंने यूज़ किया तो उसकी हेल्प से 0 मिल जाएगा. लेकिन अब सीधा मैंने जैसे सोचा ऐसे भी आप सोच सकते हो. यस और नो? Yes, sir. ओके, देखो Yes. उन्होंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म को कंसंट्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड किया. तो सिमिलर फॉर सेकंड टर्म, सिमिलर फॉर थर्ड टर्म, ऐसे करके यहाँ पे आपको नोट 1 में यहाँ पे दिखाया गया है. इज इट ओके? Yes, sir. Okay, now we go for the next note. This is very important note. The modulus function of x is defined by modulus of x is equal to क्या होता है, x and minus x होता है. अब x कब, जब x ऑलवेज पॉजिटिव हो तब, एंड माइनस x कब, जब x नेगेटिव हो तब. यस और नो? ये तो आप जानते हो ना. Yes, sir. ओके, हाँ. Yes, अब sir. यही फंडामेंटल्स में x माइनस ए के लिए ऑपरेट करो या फिर अप्लाई करो. सो व्हाट यू कैन गेट, सो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू पॉजिटिव x माइनस ए एंड नेगेटिव x माइनस ए. अब ये पॉजिटिव x माइनस ए किसके लिए, तो जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू 0. उसका मीनिंग होता है जब x ग्रेटर इक्वल टू ए होगा तब, क्योंकि माइनस ए अगर आप राइट साइड ले जाएंगे so we have x greater equal to a. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes. Similarly, x minus a less than 0, that means what we can say, it is x less than a. Means a जो है वो हमने 0 के साथ ले लिया, that means x less than a. So this is the definition of modulus x minus a. Any doubt, any question in this note number 2? No, sir, no Yes, sir. doubt. ओके, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन एग्जाम्पल फॉर दैट, है ना. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड्यूलस टी माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस टी प्लस 1 टी ग्रेटर इक्वल टू 0. इसके लिए मुझे लाप्लास फाइंड करना है. तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास. यस और नो? एवरीबडी Yes, अंडरस्टैंड? हाँ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखना सब लोग. तो मैं पहले फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, वही फंक्शन नीचे
ओके मैं देख लेता हूँ नीचे स्पेस मैंने कितना रखा है। ओके स्पेस ही नहीं रखा है, सॉरी। ओके तो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, इसलिए हमारे ग्रीन बोर्ड पे। यस, find Laplace transfer for t when f of t is equal to t minus 1 plus t plus 1 and t is always greater or equal to 0. So this is the given statement. Okay, now I want to find the Laplace transform of this. So first I have to define this function. So t minus 1 plus t plus 1. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि t always आपको क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। यस सर। तो अब ये मॉड्यूलस में आप t ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे तो t प्लस 1 में कोई चेंज आएगा? नो सर। नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। दैट मीन्स उसको मुझे एज इट इज रखना है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ t। सर वो कुछ समझ में नहीं आया। ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलो देखो, मेरा t ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो उसका मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस टर्म विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। यस और नो? जिसको Yes, नहीं sir. पता चला था उनको। यस सर। यस सर। है ना? ओके, अब इसके बारे में सोचते हैं। चलो तो t माइनस 1 जो है, सो t माइनस 1 के लिए क्या हो सकता है? सो t माइनस 1 के लिए अगर आप सोचेंगे तो उसके लिए हमने अभी जो डेफिनेशन अप्लाई किया वो कर सकते हैं कि नहीं? जब पॉजिटिव होगा तब t माइनस 1 एंड जब नेगेटिव होगा तब t माइनस 1, नेगेटिव t माइनस 1। यस और नो? Yes, sir. बट सर हाँ बोलो। माइनस कैसे आएगा? टी तो 0 है, 0 हो सकता है। हाँ 0 हो सकता है। ओके, सो 0 लेंगे तब नेगेटिव आया कि नहीं? तो सर ओनली 0 के लिए रहेगा ना, ये सेकंड जो लिया वो? नहीं, लेकिन हमको, हाँ 0 के लिए मीन्स हमको सबके लिए सोचना पड़ेगा ना, यस सर। है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो 0 के लिए नहीं लेता हूँ, 0.5 लेता हूँ, देन नेगेटिव है सर। हाँ तो पता चला आपको क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो ये जो 0 लेस देन t लेस देन 1, तो उसके बीच में जब होगा तब वो नेगेटिव वाला आएगा। एम आई राइट हो रहा हूँ? यस सर। और जब Yes, ये sir. 1 से बड़ा है, दैट मीन्स t ग्रेटर इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये इक्वल टू ऊपर आए, नीचे नहीं आए। यहाँ पे उसका मीनिंग क्या हुआ? 1 लेस और इक्वल टू t लेस और लेस देन इन्फिनिटी। यस और नो? यस सर। सो इस को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन पहले मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन क्या हुआ? 2t when 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे माइनस टी प्लस टी करके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, सो 2 when 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। फिर से रिपीट Yes, करेंगे sir. वो 2t वाला? यस, फिर से कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे देखो, इसको ओपन करो दोनों ब्रैकेट को। सो t प्लस टी 2t, माइनस 1 प्लस 1 0, सो 2t आ गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो माइनस टी प्लस टी, वो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो 2 टाइम्स हो गया। डन? Yes. डू यू यस अंडरस्टैंड? सर। यस सर। ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट? यस यस, बोलो। लिमिट्स कैसे? सॉरी? सर उसको लिमिट्स हमने कैसे डिफाइन किए फिर से? वेरी 1 गुड, to infinity, वेरी 0 गुड। to 1. यस वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमने अभी कैसे डिफाइन किया, तो उसके ऊपर फोकस करो कि जब वो नेगेटिव बन रहा है तब उसको हम नेगेटिव रखते हैं, जब पॉजिटिव बन रहा है तब पॉजिटिव बोलते हैं। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो हमने रख दिया यहाँ पे कि ये माइनस है और ये प्लस है। अब उसके लिए लिमिट चेक करें कि नेगेटिव बन रहा है तो टी की कौन सी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव बनेगा? 0 to 1 के लिए। यस और नो? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे मैंने इंटरवल रख दिया 0 लेस और इक्वल टू लेस देन 1। नाउ इज इट ओके? फर्स्ट ये
यस सर। अब यहाँ पे देखो यस इसके अलावा कौन सा इंटरवल बाकी बचा t ग्रेटर इक्वल टू 0 में 1 से इन्फिनिटी है ना। सो अब ये बाकी बचा वो अदरवाइज होगा, दैट मीन्स 1 लेस और इक्वल टू t लेस देन इन्फिनिटी। उसके लिए ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है। गॉट इट? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अब ये जो फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना, उसका मतलब इसी का फाइंड करना हुआ कि नहीं? यस सर। सो इसके ऊपर अब लाप्लास फाइंड कर दो। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब कितने पार्टीशन है? 2। सो यहाँ पे 2 कर दिया मैंने। फर्स्ट स्टार्ट करूँगा 0 to 1, यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 to 1 में है 2 इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 2t इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। फाइंड कर पाएंगे कि नहीं इसके लिए? यस सर। Yes, sir. सो यहाँ पे मैं पहले 2 को बाहर ले रहा हूँ। सो 0 to 1 ई रेज टू माइनस एस टी डी टी प्लस 2 बाहर 1 to इन्फिनिटी टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पे देखो 2, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। 0 to 1 प्लस 2 बाहर चला गया। ओके, अब इसके लिए मैं वो जनरल फॉर्म यूज़ करूँ तो टी एज इट इज ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, है ना। माइनस टी का डेरिवेटिव 1, 1 इसी का करेंगे तो ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। Yes, सो sir. स्टॉप हियर प्लस 0 यस। ई अंडरस्टैंड अप टू हियर? Yes, sir. यस सर। देन हियर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 एंड 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 2/s मैंने बाहर ले लिया। सो 1 रखूँगा तो माइनस ई रेज माइनस एस। माइनस माइनस प्लस ई रेज टू 0, ओके, प्लस 2। अब ई रेज टू इन्फिनिटी, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगा। 0 यस सर। 0 हो गया। माइनस करके मैं पहले 1 सब्सटीट्यूट करूँगा। सो ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस पहले में, यहाँ पे माइनस ई रेज टू माइनस एस, सब टी नहीं आएगा, 1 हो जाएगा ना टी। यस, सो माइनस एस अपॉन माइनस एस होल स्क्वायर। यस और नो एवरीबडी? यस सर। Yes. यहाँ पे मुझे मिलेगा 2/s, नाउ हियर माइनस ई रेज टू माइनस एस प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पे देखो ई रेज टू माइनस एस अपॉन माइनस एस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस। देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर भी प्लस है। सो ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो माइनस 2 ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस प्लस 2/s प्लस 2 ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। सो विच टर्म्स विल बी कैंसिल आउट? सो दिस वन 2 और प्लस 2 वाला कट हो जाएगा। प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव ओनली 2/s plus 2 e raised to minus s upon s square. So this is the required Laplace transform of given function modulus of t minus 1 plus modulus of t plus 1. So is there any doubt, any question in this example? ये बहुत ही important चीज़ यही है। अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो you can do any example. मैं अगर यहाँ पे 1 की जगह पे a दे दूँ तो भी कर पाएंगे कि नहीं? यस सर। है ना। सेम एग्जांपल 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ तो भी आप कर सकते हैं, है ना। 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा उसमें। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? नो सर, नो डाउट। ओके, सो यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, वहाँ पे किया है ना। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अभी जो किया था वो क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ discontinuous function. Okay, everybody? यस सर। Yes. Okay. Now we are going to discuss about the Laplace transform of
periodic function. But before that you have to understand about the periodic function. तो periodic function किसको बोलते हैं, किसी को याद है? फंक्शन जो रिपीट करे अपने आप को। वेरी गुड, वेरी गुड। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम वैल्यू द नेचर ऑफ द फंक्शन विल बी सेम। ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो साइन टी का आपको पता है कि नहीं? यू नो अबाउट द साइन टी, है ना? तो फॉर एग्जांपल उसका अगर आप ग्राफ देखेंगे ना तो साइन टी का ग्राफ क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सो जीरो से पास होता है, ऐसे करके नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके जा रहा है कि नहीं? यस सर। दिस इज द एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। ओके, सो दिस इज योर टी एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे देखो तो ये जो है दिस इज योर जीरो, ये होगा वो पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर देन योर ग्राफ विल बी रिपीटेड। सॉरी 3 पाई 4 यस पाई। सर। हाँ, कहाँ से रिपीट हो रहा है? तो देखो 0 to 2 पाई में जैसा है ऐसे ही 2 पाई to 4 पाई में दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और 4 पाई to 6 पाई में दिखेगा। यस सर। ओके, सिमिलरली 0 to -2 पाई, -2 पाई to -4 पाई, -4 पाई to -6 पाई, ऐसे करके दिखेगा कि नहीं? यस सर। है ना? तो Yes, sir. this type of examples or this type of functions is known as the periodic function. Okay, so you can say that the f of t is equal to sin t is 2 pi minus 0 periodic. 2 pi minus 0 का मीनिंग क्या हुआ है? 2 pi periodic. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम मीन्स 2 pi minus 0 कर दिया। ओके एवरीबडी? यस सर। सो साइन टी इज ए 2 पाई पीरियोडिक। सिमिलरली कॉस के लिए अगर आप सोचेंगे तो कॉस टी इज ऑल्सो दी 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. ओके, किस कोई ऐसा है जिसको नहीं पता चला हो ये? प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज रेज योर हैंड। Okay, that means I accept that all students are understand. सर tan और cot के फंक्शन में सर पीरियड कितना आएगा? tan और cot में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना तो वो पाई के साथ डील कर रहा है, -पाई टू पाई, है ना? यस सर। है ना? तो उसका ग्राफ देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी फंक्शन का ग्राफ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसका बिहेवियर जितना सेम रहेगा, यू कंसीडर दैट इंटरवल ओनली। ओके डन? देखो अब आपने पूछा है तो मैं बता दूं, तो tan का अगर आप देखेंगे ग्राफ तो ऐसे होता है, ऐसे ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं कि नहीं? और फिर आप ऐसे करते हैं कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, यस और नो? यस सर। है ना? यहाँ सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द tan t। ओके, हम ऐसा बोलते हैं। तो अगर इसका अगर आप देखेंगे ना तो ये जो है, ये जो लाइन है वो है -पाई है, और ये जो लाइन है आगे बढ़ते जाएगा, दैट इज योर पाई लाइन, है ना? तो उसका इंटरवल हुआ -पाई टू पाई। बट उसको पीरियोडिक, उसका पीरियड फाइंड करना है तो क्या करेंगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, सो एक्चुअली वो भी कितना हो जाएगा? अंडरस्टैंड? 2 pi. 2 पाई वो नहीं सर होता है। सेक और कोसेक में 2 पाई आएगा ना? सॉरी नहीं, ये 2 पाई नहीं होता है, ये कहीं हमने गड़बड़ किया है। इसका पीरियड पाई होता है। 10 जो होता है ना, 10t, उसका पीरियड पाई होता है। तो उसके लिए शायद ऐसा होगा, 0 to पाई वाला होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. है ना? देखो 0 to पाई यहाँ पर भी उस हिसाब से, यहाँ पर भी उस हिसाब से। तो जो होता है वो 0 to पाई में ही वो फिक्स रहता है, तो उसको 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। अंडरस्टैंड?
Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ओके, अब मैथमेटिकली क्या होता है वो मैं बताना भूल गया। ये तो हमने ग्राफिकली चेक किया, ओके, लेकिन मैथमेटिकली पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं उसको चेक करना है। तो इफ़ यू राइट डाउन एनी फंक्शन एफ ऑफ टी विद द पीरियड इन दिस वे, दैट मीन्स टी प्लस पीरियड पी, मीन्स यहाँ आप कुछ भी रखो तो वापस वही का वही फंक्शन मिलता है, देन यू कैन से दैट इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास साइन टी है तो मैं उसको ऐसे लिखता था, मुझे फॉर्मूला थी टी प्लस टू पाई, तो मैं टी प्लस टू पाई करूँगा, साइन टी प्लस टू पाई इज नथिंग बट साइन टी, यस और नो? Yes, sir. और सिमिलर फॉर कॉस, सो कॉस टी प्लस टू पाई अगर मैं करता हूँ देन इट इज़ ऑल्सो कॉस टी। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो उसका पीरियड दिखा रहा है, पी है ना, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू टू पाई, पी इज इक्वल टू, लेकिन टेन के लिए क्या था, यू नो वेरी वेल, पाई प्लस टी था या फिर टी प्लस पाई था, तब जाके आप टेन टी बोलते थे, यस और नो? Yes, sir. सो फॉर टेन द पीरियड इज पाई। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. So this is the mathematical definition and this is the graphical representation of the periodic function. So you can see here a function f of t is said to be periodic function if there exists a constant p greater than 0 such that f of t is equal to f of t plus p for all t. Here p is a period of f of t. जो p जो यहाँ पे indicate कर रहा है that is nothing but our period. सो साइन टी एंड कोस टी आर टू पाई पीरियोडिक फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड टेन टी इज पाई पीरियोडिक फंक्शन एज टेन टी इज इक्वल टू टेन टी प्लस पाई। ओके, अब इस टाइप के जो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, उसके लिए हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सो अंडरस्टैंड पीरियोडिक फंक्शन एवरीबडी? यस सर। Okay, so we will continue with the Laplace transform periodic function in next class. So is there any doubt, any question in today's lecture? No, sir. No doubt. सर What about No others? doubts. Okay.